Sources also giving out details of what happened on that fateful night. How did the killer brat end up behind the wheels of the Porsche in the first place? What happened? We're told that the killer brat had told his grandfather that he was going to a party with his friends who passed class 12th. He received the keys of the vehicle and a credit card as well to pay for the party. He is then said to have driven the Porsche to the pubs while his driver tailed him. And while he came out after the party at the pub, where he racked up a huge amount in a short space of time, he looked completely inebriated, which is why the driver also told his father that it would not be safe for him to drive. Sources saying that the driver had driven the Porsche out of the parking lot as well, but it was the brat who insisted on driving the vehicle, after which his father gave in. So the driver got into the passenger seat while the brat drove and his friends sat in the back. This is what is said to have taken place on the day. In fact, the police probe also looking at whether there is any evidence tampering that has taken place. Our team, in fact, confronted the grandfather of the accused juvenile as well, who claimed that the family is cooperating with the police officials. हम पुलिस और कानून को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं जो भी हमारी तरफ। का तुम्हाला का आणलेले चौकशीसाठी? एक मिनिट. छोटा राजन बच्चा चौकशीसाठी आणलेले. छोटा राजनच्या चौकशीसाठी तुम्हाला आणलेले का? But this VVIP brat's grandfather may have a checkered past. According to the Shiv Sena leader Ajay Bhosle, the grandfather of the accused had taken the help of underworld don Chota Rajan regarding a property dispute with his brother, who was Ajay's friend. The minor's grandfather also met members of Rajan's gang in this regard, and later he was also named in an attempt to murder case. Listen in to the leader's allegations. नाबालिग जो लड़का है, जो परसों जिसने जो एक्सीडेंट में दो इनोसेंट लोग की जान गई, उसमें उनका जो पोता है, तो उनका पोता है इनका। अच्छा। तो 2009 में छोटा राजन को मेरा सुपारी दिया था मेरे को मारने के लिए। मेरा और राम का जो छोटा भाई है, इनका मेरा दोस्ती है, उनके पास आने का जाने का, तो उसको ऐसा लगा कि उनके घर में कुछ पैसे के ऊपर लेके झगड़ा चालू हो गया था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अजय भोसले ही पूरा सपोर्ट करता है, इसके लिए उसने छोटा राजन को बैंकॉक में जाके मिलके मेरा सुपारी दिया था मारने। गोवा से मेरे को एक आदमी का फोन आया था। वो आदमी ने बोला 5 साल पहले हमने हमारे इधर का सिक्वेरा करके एक आदमी है, वो सिक्वेरा ने अग्रवाल को एक 100 एकड़ जगह इधर गोवा में लेके दिया था। वो जगह लेने के बाद में उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, इधर के कोर्ट में 156(3) का केस दर्ज करके उसको आरोपी बना के कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस लोग को मैनेज किया। एक प्राइवेट गाड़ी में पुलिस, इनका एडवोकेट झेंडे करके है वो, और 3 कार में सब इधर के गुंडे लोग को लेके जाके गोवा से वो आदमी को उठा के लाए। इधर से उठा के लाके बाद गोरेगांव पार्क में केस दर्ज किए, उसके पास से क्या लिखवा के लेने का था, उसके से पैसा लेने के था लिए, उसको एरोरा जेल में भेजे। एरोरा जेल में 15 दिन में वो आदमी की मौत हो गई। इसका भी अभी तक खुलासा नहीं है, वो आदमी मरा कैसा, क्या कैसा, कुछ खुलासा नहीं है। Meanwhile, there's also no end to the politics over the incident. The opposition continues to corner the government over the lapses in the case. The BJP has rubbished the charges of the opposition and said that all attempts were made to ensure stringent punishment for the accused. There was even a protest staged by the NCP Sharad faction against illegalities by the pubs. पुणे एक्सीडेंट मामले में अब राजनीति गर्माती जा गई है और इस वक्त पुणे कलेक्टर ऑफिस के सामने शरद पवार खेमे के जो कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपना विरोध जता रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर के आए हैं। और आपको अगर मैं मराठियों में ये तख्तियां लिखी, अगर मैं आपको हिंदी में बता पाऊं तो इनका ये कहना है कि हमें भय मुक्त शहर चाहिए, हमें जुर्म से मुक्त ये शहर चाहिए, जो इलीगल जो पब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। और कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो गृह मंत्रालय है, उस पर भी ये कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि आखिर आप लोगों की क्या मांग है और क्या अब ये राजनीति हो गई है या फिर ये प्रोटेस्ट हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब ये हर जिले के प्रमुख होते, उनके अंडर ही पुलिस कमिश्नर या पीएमसी यानी म्युनिसिपल कमिश्नर या आरटीओ या एक्साइज आता है। आज जो 5 दिन पहले जो घटना हुई है, जिस वजह से पुणे महाराष्ट्र में, देश में और विदेशों में बदनाम हुआ है, उसके बाद ये बिगड़ा हुआ पुनः दुरुस्त करने के लिए हम पवार साहब की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र जी पवार, इस पार्टी की तरफ से निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें हमारे ये रिक्वेस्ट लेटर है कि गए 10 सालों में देवेंद्र जी फडणवीस और भाजपा ने इस पुणे को बदनाम करने का, बर्बाद करने का काम किया है। पुणे के सारे भाजपा के कॉर्पोरेटर्स का, उसके साथ एमएलए, एमपीज, इन्होंने जो गुंडों की टोलियां बढ़ाई,
जिस तरीके से गुनेगारी बढ़ाई, उस वजह से आज पब्स, डिस्को बार, मसाज पार्लर बढ़े। ये कृपया करके बंद करें। ये क्या कर दिया ये 9 साल में ये बीजेपी सरकार ने, एक महिला होके और एक माँ होके हमें आगे का डर है कि हमारी आगे की पीढ़ी बर्बाद न हो जाए। जैसे बाल कारागृहों में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये किया, गुनाह किया है, वो रखे हुए हैं, वैसे इनको भी बाहर रखा जाए। अगर 5 या 10 दिन की सजा होती है, इतने 2 लोगों की जान लेने के बाद तो क्या है, उनको पिज्जा बर्गर खिलाया जाता है। In fact, we also tried to speak to the brother of the NCP MLA, Sunil Tingre, who allegedly met and also called people to try and dilute the probe and aid the cover-up in the case. Here's what happened. सर से 2 मिनट बात करना था। सर नहीं ना, एक प्रोग्राम के लिए गए हैं। कहाँ पर? वडगांव शहरी में। अच्छा, आप सर? भाई है उनका। अच्छा, अभी नहीं है क्या? नहीं है। कब तक आएंगे? ऐसा बोल नहीं सकते आप, शेड्यूल क्या क्योंकि है। फोन भी नहीं उठा रहे सुबह से वो। मैं आपका नंबर दे के रखिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, बोलिए। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था उन्होंने। हाँ, प्रेस हो गया था। हाँ, लेकिन फिर भी कैसा है कि कुछ चीजें बाहर आई है, उस पर थोड़ा उनसे बात करना था, तो अपना उनका डिफेंस क्या है वगैरह उसे रिगार्डिंग। Now, the opposition has a number of people that it wants to hold accountable. Here's the political assessment of the blame game. प्रकरण है, उसमें पुलिस अधिकारी, तपास अधिकारी और डिफॉल्टर है, तो उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। वो जो घटना है वो फास्ट ट्रैक में लेके वो जो गुजर गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस कमिश्नर है, उनको सब कुछ मालूम है और उन्हें इस्तीफा देके यहाँ से बदली होना चाहिए। थोड़ी देर बैठने वाला है, उनको समझना चाहिए। पुणे के लोग रोड पे आए की देवेंद्रजी त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये असं म्हणाले की पोलिसांनी कुठल्याही राजकीय दबाव तंत्राच्या प्रेशर खाली येऊ नये। आता राजकीय दबाव तंत्र कोण देऊ शकतं, तर जे सत्तेमध्ये आहेत तेच देऊ शकतात। तर देवेंद्रजी कुणाबद्दल बोलत होते हे महाराष्ट्राच्या जनतेला ते उत्तर पाहिजे की राजकीय दबाव कोण टाकत होतं, कोणी फोन केला, कुणामुळे बेल मिळाली, या सगळ्याचं स्पष्टीकरण महाराष्ट्र सरकारला, राज्याला आणि या देशाला दिलं पाहिजे। Now, the Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has spoken 2 times now, slamming the opposition for politicizing the issue. He has backed the police force completely. Listen in. याचं राजकीयकरण करण्याचा प्रयत्न त्यांचा चाललेला आहे। या संदर्भात जी काही कारवाई पोलिसांनी केली पाहिजे ती सगळी पोलिसांनी उघडपणे केलेली आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डने जो चुकीचा निर्णय दिला होता त्याच्या विरोधात वरच्या कोर्टात जाऊन पुन्हा ज्युव्हेनाइल जस्टिस बोर्डाकडे ती केस रिमांड करून घेऊन तो निर्णय देखील बदललेला आहे। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. For plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.